Hello students, welcome to Bioratna. I am Chandana Sengupta. In today's video, we are going to discuss the figure 5.11 of linkage from the chapter Principles of Inheritance and Variation. This is in continuation with yesterday's video on linkage and recombination. Let us see this figure 5.11. Actually, nothing is difficult till we understand it properly. तो चलो try करें. This figure 5.11, which almost 100% students find difficult, to make it easy, you have to remember few things. You already know that this was the experiment done by Morgan, and where he did the experiments on Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster. You also know that this was a dihybrid cross. Mendel, he did the dihybrid cross on pea plant. Here he is doing this experiment on a insect. So it should give, as it is dihybrid cross, it should follow the Mendel's law of independent assortment, which is based on dihybrid cross. But here Morgan found that there is much deviation. It is simply not following the law of independent assortment, which states that other than the parental combination, जैसे मेंडल ने किया था yellow round green wrinkle, only two parental combination, but in F2 he obtained two other recombinants and the ratio was 9:3:3:1. ये था ratio. This one was parental, this one was parental, and these two, they were the recombinants. अब आप ये पूछ सकते हो कि क्या मॉर्गन को ये रिकॉम्बिनेंट्स नहीं मिले? This Morgan, he also got the recombinants. He also got the parental combination. He also got the recombinants. Then what is the problem? He didn't obtain it in this ratio. It was as if the parental genes, not parental alleles. वहाँ पे थोड़ा सा रुक के सोच लीजिएगा ना. The parental genes, they are linked. They do not want to separate. By this I mean that this two parental, one cross we are just going to study. The ratio, this is not 9:3:3:1, but the parental combination itself is 98.7% of the 100. 98.7% तो पूरा ये दोनों ही ले गए. और these recombinants, they were only 1.3%. रेशियो में आप निकाल लो कितने कम हो जाते हैं. यहाँ out of 16, these are 6. So why this? Why this is happening? So based on that, he gave the linkage and recombination. Now to draw, we are now going to draw the figure 5.11. At the back of your mind, you keep that yellow round, green wrinkle, yellow wrinkle, green round. उसके रेफरेंस से आप अच्छे से आराम से इसमें बढ़ सकते हो. But there are many differences while you draw the cross. वो difference अगर आपको पकड़ में नहीं आया तो then at the very first step you will stumble. What are these differences? Let us see कि क्या ध्यान रखना है जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे इस ड्रोसोफिला melanogaster का. The first difference, what Mendel did, he took the first letter of the dominant allele. While assigning these symbols, what he did, he took the first letter of the dominant allele and the recessive one was the small letter. This was a very nice way. This is giving you two messages. It is telling you that out of tall and dwarf, just looking at it, even if you don't know, you can say that okay, tall is the dominant one and
Dwarf is the recessive one. So who is dominant? This one thing this is telling you. And the next thing, by taking same letters, you get the message that these two are the alleles of same gene. Alleles of same gene. By simply taking capital T and small t. Now, next, come to Morgan. What Morgan is doing? First you think yourself, is there any other way? क्या आपको अगर एज ए साइंटिस्ट बोला जाए कि आप कुछ अपने एलेलीज को कोई सिंबल कुछ असाइन कीजिए और उस तरह से क्रॉस बनाइए, आप क्या करते? व्हाट मॉर्गन डिड, सी ही टुक द रेसेसिव एलेली. उन्होंने जो क्रॉस किए थे, वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग, दिस इज व्हाइट आई एंड येलो बॉडीड फीमेल is crossed with white ka dominant is red, this is red eyed and brown bodied male. Brown bodied male. All the time we have to mention the sex also. This is sex linked inheritance na. This is one more difference from Mendel. Now उसने क्या किया? W white का E कहाँ चला गया? What Morgan did, now he took the, you understood, you got it. He took the recessive allele का first letter. तो ये दो recessive है. So for white eye he took W, small w, and for red eye क्या कर सकते हैं फिर? W plus. For yellow body he took small y, and for brown body he took y plus. तो हमेशा अभी हम जो क्रॉस बनाने वाले हैं, there we will be following this. दैट मीन्स क्या फॉलो करने वाले हैं हम? एक तो हम लोग ये सेक्स मेंशन करते चलेंगे, और दूसरा ये कि हम स्मॉल रेसेसिव वाले का फर्स्ट लेटर लेंगे, एंड फॉर द डोमिनेंट वन वी विल पुट वन प्लस ओवर इट. दिस इज वन थिंग. ठीक. व्हाट एल्स? द नेक्स्ट थिंग इज दैट these genes, they were present on sex chromosome. They were present on sex chromosome. तो जैसे आप you are used to in dihybrid cross of Mendel, आप simply ऐसे जो R R Y Y सिर्फ अल्फ़ाबेट लिखने से आपका काम चल जा रहा था, वैसे नहीं चलने वाला है. All the time you are going to show the sex chromosome whether it is X or Y, and then you are going to show this on it. Simple है. जस्ट आपको X अगर है, इफ दिस इज X क्रोमोसोम, इफ दिस इज इट सेंट्रोमियर ना, देन द W और Y दोनों स्मॉल वाले आपने दिखा दिए. ठीक. Y और इट मे बी W प्लस Y प्लस, it is present only on X chromosome. Remember that most important point is that these genes are located on X chromosome and they do not have any allele on Y chromosome. तो यहाँ Y के पास कोई भी allele नहीं है. You need not write any genes on it. इतना फॉलो करते हुए चलिए अब इस क्रॉस को हम बनाते हैं. So here we start. The character is white eye and yellow body. And this is a female. So this is the sign of female. It is crossed with a red eye and brown body. Brown bodied. He did many crosses. No, this is one of the cross. Brown or bodied. This is male. Sign for male. तो what I told you, कैसे दिखाते हैं अब इसको? This is female. So first draw two X chromosomes. This is one X chromosome, this is its centromere, this is another sex chromosome, X chromosome, and this is its centromere. Now draw the two genes, not alleles, the two genes Y and W. Y and W, because this is having both the recessive. So this will also have small y, small w. Done. Now here also you draw one X chromosome,
This is the X chromosome and this is the Y chromosome. What guideline we have to follow? Y chromosome does not have any allele. Simple है. तो यहाँ पे सिर्फ आपको बनाना है this capital small y plus and for white W plus. Done. देख लो एक बार. स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट अच्छे से दिमाग में बैठ जाए तो फिर नेक्स्ट वाले आराम से आ जाते हैं. these are the parents, so this is the parental generation. White eye, for white eye this W is taken, for yellow body this Y is taken. Both X chromosomes, both are having alleles on these two are having alleles on the next chromosome, homologous chromosome. Here the male has only one X chromosome, so these genes are present on the X chromosome. Y chromosome does not have any allele, so we are not showing any allele on Y chromosome. अब बनाते हैं F1, रेड कलर से बना दें तो दोनों जनरेशन सारे अलग अलग दिखाई देंगे. अब आप लोग काफ़ी मैच्योर हो गए हो, अलग अलग फिर बार बार से गमीट्स अब आप अपने ऐसे देख के बना सकते हो, इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नहीं बना सकते हो तो ड्रॉ करके देख लेना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जाओगे. यहाँ देखो, अब ये पेरेंटल, इफ दिस प्रिपेयर्स गमीट्स ऑल विल बी ऑफ वन टाइप. बोथ एक्स क्रोमोसोम्स आर सिमिलर, दैट इज हैविंग व्हाइट आई येलो बॉडी जीन्स. यहाँ पे दोनों गमीट्स अलग अलग बनेंगे. सो दिस F1, अब चलिए इसका दिस कैन कंबाइन विद दिस वन एंड दिस कैन ऑल्सो कंबाइन विद और दिस वन. तो क्या कॉम्बिनेशंस मिलते हैं आपको? सो दिस इज द X chromosome. This X chromosome is having small y, small w, and now it is joining with the gamete which has the Y plus and W plus genes. See, एक generation में just opposite, it reversed. All females were white eye yellow bodied. Now all females are red eyed brown bodied. Male में भी just opposite होने वाला है ना. Now see about the males. This side we are drawing all females. This side we are drawing all males. यहाँ आपने बनाया this one X chromosome. पहले उसके पास जो क्रोमोसोम से बना लेते हैं ना, this X chromosome, this Y chromosome. This might be much easier for us. Then here you have to show the genes. What genes? ये वाला X अब इसके पास से आया है ना. So this is Y plus, sorry, this is Y, W, Y and W. Done. So all males are white-eyed and yellow-bodied. This is F1 generation. यहाँ तक पहुँच गए. So this F1 completed. Now here it is written in your book, it is written gamete. गमीट का मतलब ये नहीं बच्चों, इसके बाद गमीट लिख के देयर आर द डायग्राम्स. इस साइड, दिस साइड इट इज रिटन F2. नाउ वॉट एवर डायग्राम्स आर हियर, दे आर नॉट गमीट्स. व्हेन इट इज रिटन गमीट एट द टॉप एंड देन द डायग्राम्स आर देयर, देन स्टूडेंट्स थिंक दैट दीज आर द गमीट्स. उसके बाद फिर वो डायग्राम डिफिकल्ट सा लगने लगता है. नो, यहाँ भी हमने बिना इसके गमीट शो किए अपने दिमाग में कैलकुलेट करके बनाए थे. यहाँ भी ये आपको कह रहा है, यहाँ भी आप डाल सकते हो एक, यहाँ भी लिख सकते हो बीच में गमीट. गमीट बन गए. उसके बाद फ्यूजन के बाद दिस F1 वॉज फॉर्म्ड. दिस विल क्रिएट लेस कन्फ्यूजन. नाउ दिस गमीट मीन्स, अब इसके गमीट बनाइए अपने दिमाग में. उसके बाद जो रिजल्ट है उसको आप यहाँ लिखिए. मुश्किल है क्या? चलिए देखें. अब तो हमें ब्लैक पेन से काम है ना. नाउ दिस F1, यहाँ और एक चीज़ आपको बताएं. देखो, व्हेन इन मेंडल्स क्रॉस आप गमीट्स बना रहे थे Y Y R R का, एट दैट टाइम यू मेड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लाइक Y कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r. 4 तरह के कॉम्बिनेशन आप गमीट्स में बना रहे थे. Because they were independently assorting as they were present on separate chromosomes. यहाँ तो Y और W दोनों एक ही साथ है.
तो ये आपके लिए इजी है। यहाँ आपको गमीट्स, ये क्रोमोसोम ही जस्ट उठा उठा के आपको शो कर देना है। आपको उस तरह से रिकॉम्बिनेशन कर करके आपको गमीट्स बनाने की ज़रूरत तो है ही नहीं। ठीक, आसान है। सोच लो क्या बताया। ये बताया कि इसमें आपको फिर ऐसे स्मॉल वाई डब्ल्यू प्लस वाई प्लस डब्ल्यू ऐसे कॉम्बिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब क्या होगा, नाउ ये F1 दे आर क्रॉस्ड विथ दिस टू F1 आर क्रॉस्ड, F1 फीमेल एंड F1 मेल। तो पहला वाला जो है अब टेक दिस फर्स्ट एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम दिस, ये दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। चलो इसका फीमेल वाला कॉम्बिनेशन यहाँ लिखें, मेल वाला यहाँ लिखें। तो व्हाट यू गेट, दिस वी हैव स्टार्टेड विथ F2 ना, दिस टू एक्स क्रोमोसोम, पहले एक्स क्रोमोसोम बना लें, फिर इसका सेंट्रोमियर कॉर्नर में बना लें। नाउ ये 4 लाइन जीन्स की ये भी बना लें, और यहाँ पे अब हम लिखते हैं दिस फर्स्ट वन दैट इज स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू, इसका फर्स्ट वन दिस इज ऑल्सो स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। डन, दिस पॉसिबिलिटी डन। नाउ टेक द सेकेंड वन तो मेल है, इस साइड लिख लेते हैं। चलो एक्स और वाई है ना, तो पहले चलो फट 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 बन गया ये एक्स, और ये दूसरा ये भी बन गया वाई, ये ज़्यादा आसान पड़ता है ना। उसके बाद ये 2 लाइन खींच लिए हमने जीन्स के, इसके साथ बना रहे थे, दैट मीन दिस इज स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू एंड द वाई इज नॉट हैविंग एनी एलेली। दिस 2 combinations for this chromosome we have completed. Now we will start with this one. चलो बना लेते हैं। इसका भी एक फीमेल, सो 2 एक्स क्रोमोसोम बना लिए, सेंट्रोमियर साइड में दिखा दिए। यहाँ भी हमने एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम बना दिया, बन गया ना। चलो बनाते हैं कॉम्बिनेशन। कैसे, ये दिस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये अब इसके साथ कंबाइन हो सकता है, या ये इसके साथ हो सकता है। दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। दोनों पॉसिबिलिटीज को लिख लें। सो फर्स्ट दिस इज वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड द अदर इज y and small w। यहाँ आ जाइए, दिस इज y प्लस w प्लस एंड द y क्रोमोसोम नॉट हैविंग एनी एलेली। हो गया। अब ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व क्या करना है आपको, कि पेरेंटल, आपको मॉर्गन के ऊपर कुछ नहीं लिखते हैं ना। चलो कहाँ जगह बनाए, यहीं पे जगह बनाते हैं। What you have to observe कि आपको अब पेरेंटल कितने मिले, पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट हमें मिलने हैं, है ना। तो 4 तरह के यहाँ भी मिलने हैं, लेकिन ये रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी कम रहेगी। यहाँ आप देखते हो अभी तक जितना हमने बनाया, ऑल दिस 4 दे आर शोइंग पेरेंटल कॉम्बिनेशन ओनली। कैसे, ये देखो, small y small w small y small w, this is white eye yellow body, so this is parental. See this one, y plus w plus है, that means red eye brown body, so this one is also parental. Now come to this side, this is small y small w, that means this is also parental. Last one, यहाँ होप है कोई रिकॉम्बिनेंट की, देखिए ये y प्लस डब्ल्यू प्लस, दिस मीन्स दिस इज रेड आइड ब्राउन बॉडीड। दिस ऑल 4 आर व्हाट, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, एंड दीज make up for 98.7% of the total. These two make up for 98.7% of total. और ये क्यों होता है, ये हमने कल के वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। ये इसलिए होता है, और यहाँ भी आप डायग्राम में देख रहे हो कि दिस हैपन्स बिकॉज बोथ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, और इसीलिए वो पास पास है, इसीलिए वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रिकॉम्बिनेंट्स तो मिलेंगे,
तो अगर सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो एक भी सेपरेट नहीं होना चाहिए। 1.3% आपको मिल रहे हैं तो कहाँ से मिल रहे हैं? आई रिपीट माई क्वेश्चन अगेन। दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि ये दोनों एक साथ है। जैसे ये पेन है, मैं इसको ऐसे करूंगी तो पूरा का पूरा पेन ऊपर एक साथ घूमेगा। ऐसा नहीं कि इसका आधा पार्ट इधर रह जाएगा, आधा पार्ट विल मूव दिस वे, नो। सिमिलरली इफ दिस क्रोमोसोम मूव्स देन दिस स्मॉल w बोथ विल मूव टुगेदर। तो समझ गए। तो फिर वो रिकॉम्बिनेंट्स जो दो मिलेंगे वो क्यों मिलेंगे? दैट इज रिकॉम्बिनेशन। कैसे? अब वो रिकॉम्बिनेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं ना। रिकॉम्बिनेंट्स आपकी बुक में फिर यहाँ साइड में रिकॉम्बिनेंट्स दिए हुए हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे यहाँ बीच में रिकॉम्बिनेंट्स बनाते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं रिकॉम्बिनेंट्स, एल्स यू विल थिंक दैट दिस इज द गमीट के नीचे है ना, तो दिस इज रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए उसने क्या कहा था कि नाउ दिस टू क्रोमोसोम्स दे विल क्रॉस ओवर। ये क्रॉसिंग की लाइन ये स्मॉल वाई WY के बीच से होते हुए दूसरा क्रोमोसोम ऐसे पास कर जाएगा। देन व्हाट इट विल डू, तो फिर ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे कि चलो तुम अपना ये स्मॉल w मुझे दे दो, तो इसने ले लिया, और मेरा W+ आप ले लो, इसने ले लिया। जब ये हुआ, देखो एक चीज़ ध्यान रखो बच्चे, आई एम नॉट डूइंग एट ऑल दिस थिंग विद द F2 जो बना लिया था यहाँ, उसको छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। गमीट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय F1, सिंपल चीज़ है, मतलब बोलने लायक भी नहीं है, लेकिन यहाँ भी कन्फ्यूजन का चांस हो जाता है। मैं पहले ही सोच लेती हूँ बच्चों को एकदम सिंपल से सिंपल चीज़ भी मतलब नहीं आता है ऐसा कंसिडर करके बताएं। जैसे when my students I got my students always from class 9 to 12, तो when they are in 9 I tell them in the first lecture itself कि अगर आपको क्या सेल है, I take into consideration कि आपने 8 तक कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपको ये भी पूछना है कि व्हाट इज सेल, बेझिझक पूछिए, लेकिन पूछिए, कुछ भी दिमाग में मत रखने दीजिए। तो मुझे जैसे ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन फिर भी मैंने ये आपको बता दिया कि नहीं तो इसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाओगे F2 के साथ। F1 इज प्रोड्यूसिंग गमीट, तो यहाँ हमने रिकॉम्बिनेशन इनका रिकॉम्बिनेशन दिखा दिया, तो नाउ यू विल गेट रिकॉम्बिनेंट। कैसे? अब इन दोनों के साथ इसको कीजिए, यहाँ हम रिकॉम्बिनेशन नहीं शो कर सकते बिकॉज Y इज नॉट हैविंग एनी एलेली। जब Y के पास एलेली नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन क्या करेगा? चलो बनाओ अब इसके गमीट। ये वाला पहले लेते हैं, दिस क्रोमोसोम, X क्रोमोसोम ऑफ फीमेल। क्या मिले रिकॉम्बिनेंट्स हमें? चलिए टेक दिस फर्स्ट वन, दिस X क्रोमोसोम इट हैज़ Y एंड W+, इसके पास Y और W+ है। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन हमेशा पूछते चलो कि मैम ये आपने सिर्फ W+ के साथ क्यों किया, Y+ के साथ क्यों नहीं किया? करके देख लो। द सेम W को वैसे ही रहने दो, Y के साथ करके देख लो, सेम रिजल्ट यू विल गेट। करके देख लो। हाथ में पेन लेके करते चलोगे ना, यू विल फाइंड जेनेटिक्स सो इंटरेस्टिंग कि और कुछ करने का फिर मन ही नहीं करेगा। और अगर ये पेन नहीं चलाते हो ना, तो फिर ये जेनेटिक्स विल बी समथिंग एकदम नींद में डराते रहेगा। तो सिंपली एक पेन हाथ में लेना है और दिमाग को चलाते रहना है, दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। सो दिस इज YW+ ले लिया, और ये मेल वाला जब ले लिया X क्रोमोसोम, इट इज़ हैविंग स्मॉल y स्मॉल w। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि फिनोटाइप क्या है। इसका दूसरा कॉम्बिनेशन, ये पहला ये एक हो गया, दूसरा दिस इज हैविंग YW+, और मेल के पास तो कोई एलेली ही नहीं है, डन। अब आते हैं इस क्रोमोसोम पे, चलिए इसके साथ शुरू करें। सो दिस इज द X क्रोमोसोम ऑफ द फीमेल विच इज हैविंग, क्या है भैया आपके पास? Y+W। चलो दिस इज हैविंग Y+ and W, and with male X क्रोमोसोम इसने जब कंबाइन किया, दिस इज स्मॉल y स्मॉल w, दिस इज द थर्ड कॉम्बिनेशन। नाउ द लास्ट ये बना लेते हैं, दिस इज Y+W, इसका Y+W,
और मेल के पास कुछ भी नहीं है। दिस इज द फोर्थ वन। ये सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट्स हैं। कैसे देख लीजिए, एनालाइज दिस रिजल्ट। दिस इज हैविंग स्मॉल y मतलब this yellow body, this is yellow body one but having one W plus, so yellow body and red eye recombinant आ जाइए, ये पहला वाला recombinant। दूसरा देखिए, this is having small y means yellow body and red eye, this same thing, so this is also recombinant। अब हमें दूसरी तरह का रिकॉम्बिनेंट चाहिए। ये रिकॉम्बिनेंट हमें मिला येलो बॉडी रेड आई वाला। नाउ वी वांट वाइट आई ब्राउन बॉडी। देखते हैं ये वाला। सी दिस वन, y प्लस मीन्स दिस इज ब्राउन बॉडी, y प्लस मीन्स ब्राउन बॉडी एंड W means white eye. So this is brown body and white eye. This one is also brown body, white eye. हो गए? तो ये रिकॉम्बिनेंट्स क्यों मिले? ये रिकॉम्बिनेंट्स इंडिपेंडेंट, ये और एक पॉइंट समझने की है ना, पॉइंट्स टू नॉट टू जस्ट लर्न बट टू पॉन्डर। These recombinants which you got are due to recombination, and the recombinants which Mendel got, they were due to independent assortment। 10 बार बोल लो इसको एक साथ में, ठीक। So these are 1.3% and these two parental they are 98.7%। अब इस that shows कि इन दो कैरेक्टर्स के बीच में बहुत कम क्रॉसिंग ओवर हुआ था। क्यों हुआ था? सी हियर, दिस Y and W gene I have drawn very close. This is also very important point। आपके डायग्राम में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। Both are very closely placed। This Y and W, तभी तो क्रॉसिंग ओवर इतना कम हुआ उनके बीच में, तभी तो क्रॉसिंग ओवर सिर्फ 1.3% शो किया। दूसरा वाला जो डायग्राम है आपका क्रॉस बी इन दिस फिगर 5.11, 100% सेम, पूरा यही है, जस्ट दैट इज फॉर वाइट एंड मिनिएचर विंग। तो मिनिएचर विंग वाला जो जीन है वो इस वाइट से बहुत दूर है, उसको यहाँ बनाइए। दिस इज M, दिस इज M प्लस कर सकते हो या दोनों को M कर सकते हो, ये M प्लस। सो एज दिस इज, बाकी पूरा सेम रहेगा। हर जगह पे आप ये W और M को बहुत दूर दूर बनाओगे। एज दे आर placed distantly, so there are many points from which the crossing over can easily take place, and so the recombinant frequency is very large। कितनी? In this case the recombination frequency is 37.2। यहाँ 1.3 था, यहाँ 1.3 था, here it is 37.2। that much is increased only because of this distance between them। अब वो क्रॉस भी ऐसे देख लोगे और आपके फेस पे एक स्माइल आ जाएगी, then my teaching I will think was successful। So that was all about figure 5.11। hope you have liked the video, then do subscribe, like and share, hit the bell icon so that you get the notifications in time। Thank you for watching the video।